Hello students, welcome back to the class of physics. Well students, as you know that in last session we started the chapter work and energy. And in last session we learned what is work, what is the formula for work, what is the SI unit of work and different kinds of works like positive work, negative work and zero work. And today we shall learn about energy. See, to do any work, energy is required. I just give you a simple example. Suppose we want to screw, हम एक nail को एक wooden block में screw करना चाहते हैं. तो what did we do? We raised the hammer. Correct? Now this raised hammer has energy in it. And when it strikes over the nail, it transfers its energy to the nail and that nail screws in the wooden block. तो यहां हमने क्या किया, वर्क किया, स्क्रू को वुडन ब्लॉक में डाला और उस वर्क के लिए हमें एनर्जी कहां से मिली, रेज्ड हैमर से. तो टू डू अ वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और जस्ट वन मोर सिंपल एग्जांपल आई गिव यू कि जो हम खाना खाते हैं, वट एवर वी ईट, दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एनर्जी and which makes us capable to do work. Correct? So what is energy? An object having a capability to do work is said to possess energy. जिस ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कैपेबिलिटी है, इट मीन्स दैट possess energy. Okay? तो एनर्जी, द एनर्जी possessed by an object is measured in terms of capacity of doing work. ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क. तो वर्क वही ऑब्जेक्ट कर सकता है विच पॉसेस एनर्जी. फाइन. तो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क एंड दैट इज जूल. तो वर्क की जो यूनिट थी ऐसा यूनिट, वही एनर्जी की है, दैट इज जूल. फाइन. और बड़ी यूनिट भी है इसकी, किलो जूल. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, बट ऐसा यूनिट इज जूल. ओके. एंड 1 जूल इज द एनर्जी. क्या होती है 1 जूल एनर्जी? 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. If we want to do 1 joule work, it means we need 1 joule energy. Fine? So 1 joule energy is required to 1 joule work, to do 1 joule work. Correct? Now various forms of energy. कई तरह की एनर्जी है, like electric energy, sound energy, आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, उसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी, heat energy, they are the different forms of energy. Correct? And in this chapter we have to study only mechanical energy. Okay? And this mechanical energy basically kinetic energy और potential energy को अगर हम क्लब कर दें, then it is called mechanical energy. I hope I am clear to you. So here we have to study both the forms of mechanical energy, kinetic energy and potential energy. Okay, so let's start with kinetic energy. See, kinetic energy, the energy possessed by an object by the virtue of its motion, that is called kinetic energy. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. ओके. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसमें एनर्जी है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, देन वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट possess kinetic energy. Okay, and I just give you some examples of kinetic energy, like a moving ball. Since it is moving, so it has kinetic energy. A moving bus or car or train, they have kinetic energy. Blowing winds, बहती हुई हवा, उसमें भी kinetic energy है. And running athlete, तो आप यहाँ देख रहे हैं इन सब में मूवमेंट है, एंड तो इनमें जो एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट. तो जिसमें जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ओके. नाउ वी विल स्टडी द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. ओके. अब हम एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे जो हमें हेल्प करेगा टू सॉल्व. सो नाउ वी विल डेराइव अ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट. सी, काइनेटिक एनर्जी क्या डेफिनेशन बताई मैंने आपसे? The energy possessed by an object by the virtue of its motion. Correct? तो हम इसका एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे एंड दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू सॉल्व आउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी. लेट्स स्टार्ट. सी,
कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास m है एंड सपोज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। करेक्ट। नाउ लेट इट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। हमने एक फोर्स F इस पे अप्लाई की। It was moving with initial velocity u. We applied a force F on it and it traveled a displacement s. इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? s by that force. Fine. तो वर्क डन कितना होगा ऑब्जेक्ट पे? यहां पर आप देख रहे हैं इन फर्स्ट सेशन आई टोल्ड यू दैट टू वर्क टू बी डन टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां हमने फोर्स F लगाया है और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है? s। तो ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाई है, तो ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ होगा W इज इक्वल टू F इंटू एस। करेक्ट। इसे हमने फर्स्ट रिलेशन मान लिया। नाउ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है? वर्क। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, उस पर इतना वर्क हुआ है, और जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट पे वर्क होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। अर्लियर इट वाज u, करेक्ट, एंड सपोज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, it will cause change in the velocity of the object. Fine. And let the velocity of the object changes from u to v in time t. कुछ तो टाइम लगेगा वेलोसिटी चेंज होने में, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि जो हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई थी उससे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से v हो गई टाइम t में। करेक्ट। एंड लेट a be the acceleration produced. You know whenever there is a change in velocity, acceleration is there. और ये यूनिफॉर्म रेट से चेंज हुई है, इक्वल टाइम में इक्वल, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड लेट इट बी a। फाइन। तो ये हमने कंसीडर कर लिया एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इनिशियली इट वाज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, लेट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस s एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बी a। करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे वर्क कितना हुआ? F इंटू एस। यहां पर हम मोशन की थर्ड इक्वेशन व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर वो हम अप्लाई करेंगे। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो हम इससे s की वैल्यू निकाल लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। करेक्ट। और ये s की वैल्यू हम यहां डिस्प्लेस करेंगे और हम f की वैल्यू सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में f इज इक्वल टू किसके होता है? m इंटू a। फाइन। तो ये दो रिलेशन हमने बना लिए, एक s का और एक f का। अब हम ये f और s की वैल्यूज फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो यहां पर w इज इक्वल टू f को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने m इंटू a से, और s की वैल्यू रख दी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये एक a अपॉन में है, एक a यहां है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो w कितना आ गया? 2 नीचे है, हाफ m और ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। करेक्ट। जब फोर्स F लगी, ऑब्जेक्ट S डिस्प्लेस हुआ, तो ये वर्क जो हुआ ये वो कैलकुलेट कर लिया हमने। फाइन। तो इन दिस केस u, व्हाट इज u? दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इनिशियली। अगर हम ये मान लें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था शुरू में, तो u को कितना प्लेस करेंगे हम? u की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, तो u कितना हो जाएगा? 0। और u की वैल्यू जब हम यहां 0 रखेंगे तो w आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। फाइन। तो दिस इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाइड फोर्स F एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस डिस्टेंस s एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। सो दिस इज द वर्क डन। अब ये जो हम वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट पर, ये ही वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क। तो यहां पर इतना वर्क है, तो यही ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो एक लाइन जो इसमें नीचे आपको शायद नहीं दिख रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। फाइन। तो ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अदर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कभी किसी भी मोमेंट व्हेन इट इज इन रनिंग कंडीशन एंड यू वांट टू कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन यू शुड नो टू थिंग्स, वन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट मोमेंट. And if you put the value of m and v here, you can calculate the value of kinetic energy of that object. Is that clear? That we will do in later on sessions. We will solve some numerical problems based on kinetic energy. Fine. But in this session, that's it. तो ये आप देख लीजिएगा, एनर्जी का पोर्शन मैंने आपको बताया है, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी पोटेंशियल एनर्जी. ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एट होम, बाय बाय.